Hi everyone, a very happy Saturday to all of you. And thank you very much for being so patient because we were not able to go Insta Live last Saturday because there were some technical upgradations that were happening. But today, I welcome all of you to this Insta Live session. And do you know what this session is all about, by the way? Any guesses? Okay, it's something related to, oh my god, these in-laws. You don't even know how my daughter-in-law is. Yes, very rightly guessed. This particular episode is all about the relationships between us and mother-in-law, you and mother-in-law, right? So basically, when I started this series of personal mastery, we had the focus on women, on the group of women who we generally, feel that we suffer with variety of roles that are on our plate because we have to do justice to all the roles, and that is why sometimes we feel overwhelmed. And that was the reason actually where I wanted to begin this series, where we can actually have different perspectives, some higher level perspectives as well, where we can deal certain situations of our life, of our relationships. And our first season is all about relationships and you. And today is the 8th episode where we will be covering mother-in-law and you. This is the much scared about and much talked about topic in any office gossip, in any discussion that happens where ladies are involved, specifically married ladies are involved. And hi Sumit, thank you for joining in. Hello Muhammad Jafar, thank you very much for joining in. Hello Rimi Bua, thank you very much for joining in. I'm so happy to see you, and thank you everyone for gracing this session. So as I was sharing with all of you that today we are going to cover mother-in-law and you. This is a very sensitive topic as well. I'm a little bit scared, and this is the topic that is the need of the hour as well, I feel. And there are few questions. So today I do not have any other collaborator with me. Having said this, I have few questions. 1, 2, 3, 4. I have 4 questions with me from different people who wanted to know certain things about this relationship. So today we are going to cover those questions. But before that, okay, let me know what is it that makes this relationship so frightening? Mother-in-law, daughter-in-law, what is it that makes it so frightening? Hi Umesh, thank you for joining in. So good to have you here once again. In the researches and in the studies that we have done, that people have done, that I have also done, we have realized that in today's time, we see that our generation, the youngsters, are either getting married very late in their age, or they are opting out of marriage. They don't want to get married. And when it was researched further, it was realized that it happens because they are a little bit skeptical about the relationship with their in-laws, how they would be. And we have also realized when we spoke to certain people who are unmarried or who are about to get married or who were newly married, majority of them, because we cannot categorize every youngster in this bracket or every daughter-in-law in this bracket that she doesn't like her mother-in-law or her mother-in-law doesn't like her. There is no bracket that we can do, we can put in, but majority of them, those who are young, they feel that there will be a lot of pressure on them when they will get married. There will be lots of expectations of them when they will get married. And when I was listening to all these reasons, all these thought patterns that they were sharing with me and my team, I realized that the missing link that is coming out of their mouth in the form of statements कि मुझे काम करना होगा, या they will expect me to work according to them, to follow their culture. And there is a lot of fake feminism also that is taking place these days, is because the roots lie in parent and you.
बिकॉज एज अ पेरेंट समवेयर आई फील दैट कि पिछले कुछ डेकेड से parents are not fulfilling their responsibility somehow to prepare their sons or daughters to how to gel well in the married life and that is why I started this relationship and you because we want to know कि ठीक है अगर हमें by chance वो guidance नहीं मिला है या कम मिला है with this particular series and episodes we still have a chance कि हम कुछ उसमें amendments कर सकें जितना भी हम कर सकते हैं जितना भी हमें सही लगता है. Hi Nirvana clan, thank you for joining in. So good to see you. So the roots lie back to parenting and you जहाँ पे parents ने शायद इतना emphasis ही नहीं दिया कि शादी भी करनी होती है. Because I feel that शादी तो आजकल secondary option बन गया है ना, right? Because all we want to get is get some degree education, higher education, and then we want to settle down and settle down. अब की डेट में settle down का मतलब शादी करके settle down होना नहीं है. अब की डेट में settle down होने का मतलब है अच्छी जॉब मिल जाना और अच्छा पैसा कमा लेना और अच्छी जगह पे वेकेशन पे चले जाना. सो दिस इज व्हाट सेटलिंग डाउन मीन्स नाउअडेज. तो थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो गया है, राइट? व्हाट डू यू थिंक? सो अब क्योंकि ये डेफिनेशंस चेंज हुए हैं समहाउ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी शायद अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत बिजी थे बिकॉज दे हैड टू अर्न देयर लिविंग. लोअर मिडिल क्लास को मिडिल क्लास में आना होता है, मिडिल क्लास को हायर मिडिल क्लास में आना होता है, अपर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास को हाई क्लास में जाना होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो उस वजह से भी हो सकता है कि शायद जो मैरिज की इम्पोर्टेंस है वो हम शायद या कुछ जनरेशंस अपने बच्चों को आगे नहीं ट्रांसफर कर पाए. एंड दैट इज वाई वी डोंट फील द इम्पोर्टेंस की एक लाइफ पार्टनर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या होती है. और अगर लाइफ पार्टनर हमारी लाइफ में आ रहा है somehow वी इन दिस जनरेशन फील कि हाँ तो लाइफ पार्टनर के साथ शादी हुआ है ना, इन लॉज के साथ थोड़े ना शादी हुआ है. वेर एज आई फील जहां तक मुझे ध्यान आता है, वेर एज आई रिकॉल कि इंडिया तो कल्चर ही उस रिचुअल का है जहां पे हम कहते थे कि यहाँ पे शादी दो लोगों में नहीं होती, दो फैमिलीज में होती है, राइट? सो विच मीन्स दैट कि शायद हमारी डेफिनेशंस चेंज होने की वजह से भी ये इतना सारा भी जो है सास और बहू का इशू भी आ गया है. Another thing which I feel can be or may have played a role in this friction between mother-in-law, daughter-in-law role is हमारे serials. Okay, so बहुत सारे soaps आते हैं जो mother-in-laws भी देख रही हैं और शायद daughter-in-laws भी देख रही हैं. सो मदर इन लॉज अपने परस्पेक्टिव से देख रही हैं कि मेरी डॉटर इन लॉ आएगी तो शी विल टेक केयर ऑफ द एंटायर हाउस, आई विल जस्ट एंजॉय मे बी, और मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा. सो दे आर गेनिंग द परस्पेक्टिव आफ्टर वॉचिंग दोज सोप्स that I will not have to play a major role as far as the work is concerned when my daughter-in-law comes in. और जब डॉटर इन लॉ देख रही है तो वो इस परस्पेक्टिव से देख रही है कि अरे भाई इट्स अ न्यू एक्साइटमेंट, मेरी ही चलेगी. I will be able to change the curtains, change the sofa covers or the sofa, the chairs of the dining table, in fact the entire dining table, और हर घर पूरा घर मेरे उससे चलेगा. People will be revolving around me. I'll become the sun of the house. SON वाला सन नहीं, SUN वाला सन, सूरज वाला सन. So ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं जो अलग अलग जनरेशंस अपने माइंड में रख रही हैं. अब मदर इन लॉ अपने माइंड में पर्सपेक्टिव रख रही हैं कि भाई मैं आजाद हो जाऊंगी, मुझे थोड़ा आराम मिलेगा. डॉटर इन लॉ पर्सपेक्टिव रख रही है कि मुझे पावर मिल जाएगा, जो कि यस इट्स ट्रू बिकॉज हमने अपने लास्ट सेशन में जहां पे हमने स्पाउस एंड यू को कवर किया था, वी एक्चुअली डिस्कस कि ये हमारा प्रमोशन ही है कि अभी तक तो हम बेटी थे, अब शादी के बाद तो हम सुपरवाइजर बन गए क्योंकि हमें संभालनी है चीजें, तो हमारा प्रमोशन हुआ. एंड वी शुड कंसिडर इट एज अ प्रमोशन, नॉट एज समथिंग कि अरे भाई शादी होने के बाद भी मैं कुंवारी दिखनी चाहिए हूँ, शादी होने के बाद भी लगना चाहिए कि आई एम अनमैरिड. ऐसा हमें नहीं करना है. सो नाउ बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स बोथ कम विद द एक्सपेक्टेशंस. तो अगर आई एम द डॉटर इन लॉ तो मैं एक एक्सपेक्टेशन से आ रही हूँ कि मुझे तो बाहों में उठाया जाएगा, सर आंखों पे रखा जाएगा. और अगर मैं मदर इन लॉ हूं तो मैं इस एक्सपेक्टेशन से अपनी डॉटर इन लॉ को लेकर आ रही हूं कि नाउ शी विल कम और वो पूरा घर संभाल लेगी, राइट? सो प्रॉब्लम यही आती है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस एज इन पहले से कुछ अजम्पशंस हैं, पहले से हमने ही कुछ डेफिनेशन सेट कर ली हैं. अनदर थिंग इज कि
जबकि हमने डेफिनेशन सेट की हैं पर हमें उन डेफिनेशंस का डेप्थ नहीं पता है. वी एक्चुअली समहाउ डू नॉट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ व्हाट वी आर डिफाइनिंग इन. सो लेट्स से इफ आई एम द मदर इन लॉ एंड आई फील कि अरे भाई मेरी बहू आएगी, माई डॉटर इन लॉ विल कम एंड शी विल टेक केयर ऑफ द एंटायर हाउस एंड आई विल गेट सम रेस्ट. सो मुझे इसकी डेप्थ में भी जाना है, मुझे इसके अदर साइड ऑफ द कॉइन को भी चेक करना है. अगर one side of the coin is saying that she will take care of the house, the other side of the coin also tells me that then she will have the power. Then she will be considered as the one who is going to take responsibility of everything. तो शायद मुझे वो चीज अच्छी ना लगे क्योंकि हमेशा से मेरी चलती आई है if I am the mother-in-law. And क्योंकि हमेशा से मेरे अकॉर्डिंग होता आया है and if I want my daughter-in-law to work and give me some rest, तो फिर वो पावर उसको मिलना चाहिए, right? तो वो पावर उसके, आई एम सॉरी फॉर दिस पॉज थिंग एंड I'll just repeat. I think that we lost the connection, so I'll repeat. कि if I feel कि my daughter-in-law should come and she should take care of the entire house, so I should be ready to give her that power also. जैसे पुराने जमाने में मूवीज, जो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज होती थी उसमें दिखाते थे ना, अरे बहू अब तुम आ गई हो तो ये लो चाबियों का गुच्छा, राइट? बस वही वो गुच्छा जो है ना, अब वो असली में तो रहा नहीं. बहुत कम घरों में होता होगा कि चाबियों का गुच्छा लेके आप लोग घूमते होंगे एज अ मदर इन लॉ, बट अब वो जो गुच्छा है ना वो सिर में है, क्योंकि अब हमारे हेड्स में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज हैं जो हम निभाते हैं एज अ मदर इन लॉ. एंड वो गुच्छा, चाबियों का गुच्छा यहाँ है. यहां से वो जो पूरा चाबियों का गुच्छा वो हमें सौंप देना है अपनी डॉटर इन लॉ को. पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम वो चाबियों का गुच्छा अपनी डॉटर इन लॉ को सौंप रहे हैं मेंटली, तो हमें दरकिनार नहीं कर देना है उसको. लाइक वी शुड नॉट बिकम इनडिफरेंट टू हर, वी शुड बी डिटैच्ड, बट हमें इतना पास रहना है कि अगर वो कहीं गिरने लगेगी तो हम संभाल लें. अब ऐसा क्यों करें, है ना? अब दिस क्वेश्चन कैन कम टू अवर माइंड. Before I proceed further with this explanation, I would like to welcome the Abhidev. Thank you very much for joining in. So good to see you here. Okay, so coming back to the explanation कि हमें ध्यान क्यों रखना है. Why should I be there as a mother-in-law to support my daughter-in-law when I have given her the entire responsibility and the power? तो अगर कुछ गलत होता है तो भुगतो, right? ऐसा ही होता है कई घरों में, मेजर घरों में, कि भाई इसी को करना था, यही देखे, ऐसा हो जाता है. पर ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डॉटर इन लॉ है ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी जो डॉटर इन लॉ है वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है. दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट? वी शुड फील फॉर्चुनेट दैट आई हैव, एज अ मदर इन लॉ, आई हैव रिसीव्ड अ रॉ अनपॉलिश्ड डॉटर इन लॉ. उसको पहले एक्सपीरियंस नहीं है ना बहू बनने का, तो अच्छी बात है ना, आपको खुशी होगी, राइट? तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दैट शी इज इनएक्सपीरियंस्ड, शी हैज टू बी ट्रेन्ड, और आप सिर्फ उसके ट्रेनर का काम करेंगे. ऐसा ही शायद आपकी मदर इन लॉ ने किया होगा, पर अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ऐसे आगे नहीं करेंगे. सिमिलरली अगर हम इसको रिलेट करें कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको उनके टाइम पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई होगी, उनके पेरेंट्स उनको एजुकेट नहीं कर पाए होंगे किसी भी रीजन से. पर ऐसा तो नहीं हुआ ना कि फिर आपने अपने बच्चों को आगे पढ़ने नहीं दिया, हम नहीं पढ़े थे तुम भी नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं करते ना हम. तो यही चीज हमने डॉटर इन लॉ के साथ भी नहीं करनी है कि भाई हमको तो किसी ने नहीं ऐसे किया, तुम्हारे साथ कैसे हो जाए. कोई कंपटीशन थोड़ी चल रहा है, कोई ग्रजेस थोड़े ना निकालने हैं, और ऐसा थोड़े ना कि वो कोई पुनर्जन्म लेके आई है हमारी पिछले इन लॉज की फैमिली में से, ऐसा नहीं है, राइट? सो द पॉइंट इज दैट the daughter-in-law who comes, she will always remain your junior. तो उसको एक जूनियर की तरह हमें समझना है एंड उसको उसी तरह से हमें ट्रेन करते रहना है. बी देयर, सी व्हाट शी इज डूइंग, प्रोवाइड हर दी मेंटल इमोशनल सपोर्ट, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, जहां पे आपको उसको फीडबैक देना है फीडबैक भी दें. डू एवरीथिंग बट बी देयर एज हर सपोर्ट सिस्टम. Similarly, coming back to daughter-in-law, अब सारा ही काम mother-in-law क्यों करे? Why should all the pain or all the effort should be done by the mother-in-law? Daughter-in-law भी तो human being है, तो उनको भी करना होगा. So what happens is the daughter-in-law also has to understand कि mother-in-law का भी, हम में से किसी को ट्रेनिंग नहीं मिलती कि सास बन जाओ, सास बनोगे तो ऐसे करना. देयर इज नो रूल बुक और गाइडलाइन कि व्हेन यू विल बिकम मदर इन लॉ सो व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल डू इट. अच्छा, अगर कोई गाइड बुक दे भी दे
तो कोई एग्जैक्ट सिचुएशन बाय सिचुएशन नहीं चीजों को बता सकता है, क्योंकि लाइफ है वो कैसी भी सिचुएशन थ्रो करेगी, राइट? इट्स अ वेरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ थिंग दैट हैपेंस विद इन अवर हेड एंड इन अवर लाइफ ऑल्सो. सो द सिंपल पॉइंट इज दैट कि वेन डॉटर इन लॉ कम्स टू द हाउस, बिल्कुल वो हमारी प्रमोशन है. इफ आई एम द डॉटर इन लॉ, दैट्स माई प्रमोशन दैट आई एम मैरिड नाउ, आई विल टेक केयर ऑफ दिस हाउस, आई विल टेक केयर ऑफ द पीपल इन दिस हाउस. और मुझे लगता है कि मैं टेक केयर ज्यादा बोल रही हूँ, तो आजकल जो फेमिनिज्म चल रहा है उसमें तो होगा कि हम ही क्यों ध्यान रखें, हमारा क्यों ना कोई ध्यान रखे, राइट? सो आई फील कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, किसी का माइंड ऐसा सोच रहा है कि हम ही क्यों ध्यान रखें, हमारा भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए, तो बिल्कुल उस पर भी आएंगे. पर आई वुड लाइक टू रिलेट दिस बैक टू स्पाउस एंड यू वाला सेशन जो हमने लास्ट टू लास्ट सैटरडे किया था, जिसमें हमने शक्ति एंड शिव की बात की थी, राइट? सो वी हैव द क्वालिटीज ऑफ शक्ति ऑलरेडी. इसीलिए शायद हम इस जन्म में, आई डोंट नो वेदर यू बिलीव इन दैट और नॉट, कि पुनर्जन्म होता है नहीं होता है वट, पर इसीलिए शायद हम वुमेन की बॉडी में आए हैं, बिकॉज वुमेन इज द क्रिएटर, इज द नर्चरर, राइट? सो वी हैव द पावर टू टेक द इनिशिएटिव. इट्स द पावर दैट वी हैव. सो सिमिलरली दैट इफ आई एम प्रमोटेड कि अब मैं इस नए घर में जा रही हूं, तो सबसे पहले ये है कि मुझे ये ध्यान रखना है एज अ डॉटर इन लॉ कि जो मेरी मदर इन लॉ है वो मेरी सीनियर है, राइट? होता क्या है कि जब एज अ डॉटर इन लॉ हम जाते हैं किसी घर में, तो हम अपनी मदर इन लॉ को मदर इन लॉ नहीं समझते, हम समझते हैं ये हमारी कॉम्पिटिशन है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स. सो आई एम नॉट सेइंग 100% ऑफ टाइम्स, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ऐसा ही होता है कि हमें लगता है कि मेरी मदर इन लॉ तो मेरी कंपेटिटर हैं, इनसे अच्छी सब्जी मुझको बनानी है, इनसे अच्छा घर का ध्यान मुझको रखना है, इनसे अच्छा मुझे अपने हस्बैंड का ध्यान रखना, मतलब जितना अच्छा ध्यान ये अपने बेटे का रखती होंगी उससे ज्यादा अच्छे से मैं अपने हस्बैंड का ध्यान रख के इनको दिखाऊंगी. सो बहुत सारा मैं उसमें हो जाता है, राइट? एंड दिस इज वेयर बहुत सटल लेवल पे, बहुत छोटे से लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे एक कॉम्पिटिशन शुरू होता है पहले, राइट? और वो कॉम्पिटिशन देन फिर फ्रिक्शन में बदल जाता है. वाई? बिकॉज आई एज अ डॉटर इन लॉ एम कंसिडरिंग माई मदर इन लॉ एज माई कंपेटिटर. पर वो क्यों है मेरी कंपेटिटर? वो हो ही नहीं सकती, वो उम्र में मुझसे बड़ी है, शी इज एल्डर टू मी, तो वहीं पे कंपटीशन खत्म. वो एक्सपीरियंस में भी मुझसे बड़ी हैं. किस चीज का एक्सपीरियंस? हाँ, उनको शायद मदर इन लॉ होने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो नई मदर इन लॉ होंगी, जैसे मैं एक नई डॉटर इन लॉ हूं, पर उनको एक वाइफ होने का तो बहुत एक्सपीरियंस है ना, उनको घर चलाने का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. तो चाहे गलत चलाती हैं सही चलाती है उस पर तो बाद में आएंगे, बट शी हैज डन समथिंग जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर है और उसके बेटे की शादी हमसे हो रही है. So this is the point that we all daughter-in-laws who all are listening to me, we all have to understand कि the very first thing, the moment your marriage is fixed, हमको ये दिमाग में भर लेना है, डाल लेना है कि जो मदर इन लॉ है वो हमारी कंपटीशन में कहीं नहीं आती, क्योंकि हम वैसे ही उनसे छोटे हैं, तो उनको मान देना है हमें, right? We have to value her for the experience she has, for the experience she has gained and for the experience she can share with us. क्योंकि कल को भगवान ना करे अगर वो नहीं रहेंगी, तो हमें तब शायद रियलाइज होगा आगे जाके कि हम कितना कुछ उनसे सीख सकते थे, उनकी लाइफ से, उनके एक्सपीरियंसेस से, द वे शी मे हैव हैंडल द सिचुएशंस जो हम शायद मिस कर गए. तो वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं छोड़ना हमें. So these are the major things जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन आता है. That's what I wanted to share with you. And यहीं से सारी कहानी शुरू होती है. So we all have to understand, mother-in-laws को भी, daughter-in-laws को भी, कि ये एक रिलेशनशिप है जो शादी के बाद बना है. एंड रिमेंबर कि शादी के बाद बना है तो मतलब आपकी टीम में एक न्यू एंट्री हुई है. सो mother-in-laws who all are listening to me, या फिर जो बाद में भी सुनेंगी, तो हमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी टीम में, घर आपकी टीम है ना, तो उसमें एक न्यू एडिशन है, न्यू मेंबर आया है, न्यू टीम मेंबर आया है. कॉर्पोरेट लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वर्किंग मदर इन लॉज भी हो सकती हैं. सो आपकी टीम में न्यू टीम मेंबर आया है, तो अब आपको ध्यान रखना है वो 4 फेजेस जहां से एक टीम होकर गुजरती है. सो सबसे पहला फेज, अगर टीम बिल्डिंग की भी हम बात करें, तो सबसे पहला फेज होता है फॉर्मिंग. फॉर्मिंग कौन सा फेज है? जहां पे आपने लड़की पसंद करी, और अगर लव मैरिज है तो आपके बेटे ने पसंद की है और अब शादी पक्की हो गई है. सो दैट इज अ फॉर्मिंग स्टेज, राइट? जहां पे आपने एक टीम फॉर्म कर ली कि ये वाली जो दिस गर्ल
will be married to my son and she will come to our house, right? सेकेंड जो आपका टीम बिल्डिंग का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है सेकेंड फेज जो है, पहला फेज तो फॉर्मिंग हो गया, शादी हो गई, घर आ गए। अब जब वो घर आ गई हैं उस फेज में वो न्यू है आपकी टीम में, और अगर वो न्यू है आपकी टीम में तो इस स्टेज में स्टॉर्मिंग होने का बहुत बड़ा रिस्क इज द रॉन्ग वर्ड आई थिंक, इस स्टेज में स्टॉर्मिंग होती ही होती है। न्यू है ना वो, तो स्टॉर्मिंग होगी, चाहे आधे दिन की हो, चाहे आपके मन में हो सामने ना आए, बट स्टॉर्मिंग होगी, राइट? स्टॉर्मिंग मतलब लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस इज वेरी नेचुरल, दिस हैपेंस, और ये आपको याद रखना है। सो अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू कन्वे टू बोथ द मदर इन लॉज एंड डॉटर इन लॉज इज दैट कि डू नॉट एक्सपेक्ट कि सब कुछ गुडी गुडी रहेगा, है ना? लाइफ में कुछ गुडी गुडी नहीं होता है, हर चीज का अपना एक तालमेल होता है, तो अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए। ईसीजी में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये हमने बहुत सुना है और ये हम बहुत बोलते भी हैं सारे एक दूसरे को, तो इस पे अब अमल भी करना है। सो अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर। तो जब आप किसी नई टीम में जाते हैं, डॉटर इन लॉज भी आप वर्किंग होंगी, तो आप जब काम करती थी, आप किसी नई टीम में जाती थी, तो होते थे ना वहां पे फ्रिक्शंस टीम मेंबर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ। तो सिमिलरली घर पे भी वही होगा कि व्हेन वी आर गोइंग टू सम प्लेस आफ्टर मैरिज टू आवर इन लॉज, तो वहां पे भी you are the new team member, your mother-in-law can be your supervisor or your manager, and rest of the people can be the team members, right? So उस केस में the friction or the storming or the misunderstanding will happen, that's fine. So the very first thing is accept it, right? Hi Fernando, thank you for joining in, so good to see you. Okay, so coming back to like the storming will happen, you both have to accept it. And once you accept it, now let's see how we can shorten this phase of storming. हम कैसे storming के phase को छोटा कर सकते हैं? तो corporate language में, corporate trainings में जब मैं managers को and leaders को बताती हूँ इस phase के बारे में, तो I always tell them कि देखो storming तो होना ही है, पर storming में करना क्या है जिससे कि storming बहुत जल्दी से निकल जाए और आप next stage पे, next phase पे आ जाओ। So this is the same thing that applies to both of you also, कि storming phase में एक दूसरे को पहले तो स्पेस देना है, राइट? कि थोड़ा स्पेस मतलब जहां पे मदर इन लॉ को भी आप थोड़ा सा फ्री छोड़ें कि वो अपने हिसाब से कुछ सोच सकें, अपने हिसाब से कुछ बोल सकें, एंड सिमिलरली फॉर मदर इन लॉज, अब डॉटर इन लॉज को भी थोड़ा स्पेस दीजिए कि वो अपने हिसाब से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सके। सेकेंड थिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन स्टॉर्मिंग फेज इज लॉट्स ऑफ वन टू वंस, ठीक है? तो वन टू वंस होने चाहिए। कॉर्पोरेट में हम कहते हैं मैनेजर्स को कि भी आप अपनी टीम के साथ वन टू वन कीजिए अगर आपकी टीम नहीं है तो, और यही चीज हम यहाँ पे बोलेंगे टू ऑल दी मदर इन लॉज एंड डॉटर इन लॉज कि आपका आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है, वन टू वन होना बहुत जरूरी है, उसके बिना यू नो द मिसअंडरस्टैंडिंग्स विल बी देयर, राइट? सो व्हेन वन टू वंस एंड इनफ स्पेस विल बी गिवन, तो बहुत जल्दी आपका ये जो स्टॉर्मिंग फेज अगर इतना है तो वो इतना छोटे से में ही गुजर जाएगा। हाँ, दिस टू शैल पास वाली स्टेज आ जाएगी। अब जैसे ही वो स्टेज आएगी, सो देन कम्स द स्टेज नॉर्मिंग। नॉर्मिंग जहां पे आप नॉर्म्स समझ लेते हैं, रूल्स समझ लेते हैं, आप एक दूसरे की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ लेते हैं कि ये काम तो मम्मी करेंगी, ये काम मैं करूंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, जब मैं ऑफिस जाऊंगी तो ये चीज का ध्यान तो मम्मा रख लेंगी, जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगी तो इस चीज का ध्यान मैं रख लूंगी, इस दिन ऐसा, इस दिन वैसा, तो वट एवर, हाँ, एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन प्लान आउट। तो वहां पे आप लोगों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनना शुरू हो जाता है। So this is the norming phase, and then comes performing, right? So performing stage में मतलब जहां पे आप दोनों अपना अपना बेस्ट दे रहे हो इस घर को, जो आपका घर है, and you are working on your fullest potential। तो वहां पे मदर इन लॉ, बिकॉज मदर इन लॉ सुपरवाइजर है ना, वो तो हमेशा सुपरवाइजर रहेंगी, भाई ये चीज मान के चलनी है डॉटर इन लॉज को, हमें मदर इन लॉ से ऊंचा नहीं उठना है, क्योंकि क्या करना है हमें उनसे ऊंचा उठ के, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है ऑलरेडी ना, शी इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, सो इफ शी इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड मोर देन अस, देन वी शुड वैल्यू दैट एक्सपीरियंस। ये हमारी डिग्निटी ये कहती है, राइट? दिस इज व्हाट माय मैनर्स और माय डिग्निटी टेल्स मी एज अ डॉटर इन लॉ। So, because mother-in-law is the supervisor here, so whenever your entire team of Bahu and Saas gets into the performing stage, so the role of the mother-in-law, the manager actually, becomes that she only, observes. Judge नहीं करना है, see, judgment और observation में फर्क है,
ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जर्व बोलूंगी ना तो बहुत सारे लोगों का माइंड उसका आएगा कि अच्छा जज करना है, देखते हैं क्या करती है, कहीं कुछ गलत तो नहीं करती है। ऐसा नहीं, वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व विदाउट हैविंग एनी जजमेंट, राइट, कि क्या हो रहा है, कैसे करिए, कहीं पे उसको जरूरत तो नहीं है। इफ शी नीड्स मी, लेट्स से कॉर्पोरेट में तो हम कहते हैं कि अप्रूवल्स की जरूरत है तो मैनेजर वहां पे अपने आप पिच इन करेगा, पर यहाँ पे अप्रूवल्स क्या चाहिए, राइट, कोई फाइल या प्रोजेक्ट थोड़े ना है। बट देन ओवर हियर यू विल सी कि अच्छा इसको किस चीज में सपोर्ट चाहिए। सो व्हेन यू फील दैट द सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, यू विल बी ऑल देयर। दिस इज व्हाट द रोल ऑफ अ मदर इन लॉ इज when your team of daughter-in-law, mother-in-law gets into the performing stage. So this is how this entire dynamics, group dynamics, will help you to navigate in your daughter-in-law, mother-in-law relationship in a fruitfulest of way, right? So hi SP Wealth Booster, that's a wonderful name, and thank you for joining in. So good to see you, and thank you for gracing this session. Right, so this is what is generally that we need to take care of. So now, in case if any of you have any thoughts or any questions, please do not hesitate to ask. I would be more than happy to answer them or share my thoughts on them. And while you may be thinking of your questions, or while you may be thinking that what should I type, or maybe you are typing, allow me to share few questions that I have received from few of the people. I have got one question from Rohit on my DM last to last week, क्योंकि ये हमें last week करना था and last week we couldn't do it. So last to last week he sent me this question. He asked that why there is a friction between mother-in-law and daughter-in-law, and why snake, okay, that's a cute question, why snake plant is known as mother-in-law's tongue. That's a very very disheartening question, huh? Snake plant को mother-in-law tongue बोलते हैं, right? That's very unfair to mother-in-law, na? No one should do that, okay? So, Rohit, I hope that you are listening to me at this point of time. But in case if you are not able to join today's session, you can also watch it again on YouTube. And I will also upload it on Instagram as well after this gets completed. So, Rohit, I feel that your first question has been answered already, that why there is a friction. So, friction ke reasons I have just shared. And I have also shared that how to get rid of that friction as well. Right? So, the phases that we have to follow. फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, राइट। तो ये फेजेस जो हैं, इनमें जो जो करना है वो हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो फ्रिक्शंस खत्म हो जाएंगे। और फ्रिक्शन इसीलिए होता है कि हम दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम दोनों से मेरा मतलब, अगर मैं डॉटर इन लॉ हूं तो मैं सास को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, सास मेरी कॉम्पिटिशन है, और अगर मैं मदर इन लॉ हूं तो मैं डॉटर इन लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, और डॉटर इन लॉ तो मेरी बंधुआ मजदूर है, काइंड ऑफ अ थिंग। तो ऐसा वाली सिचुएशन आ जाती है। सो दिस कुड बी द रीजन. And why snake plant is called as mother-in-law's tongue. You know, I feel that this is a cultural conditioning. In fact, you know, when you have asked this question, Rohit, that why snake plant is known as mother-in-law's tongue, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि there was a movie, Hollywood movie, which was known as Monster-in-Law. Right. So I feel that, you know, as I was mentioning few minutes ago in the starting of this session, that these serials, daily soaps, हाँ, जैसे सास भी कभी बहू थी, एंड बाकियों का तो मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, whatever, हाँ, अलग अलग नाम होंगे। तो उनमें सब में you know एक प्रोजेक्शन दी जाती है कि you know there are few mother-in-laws who are very shrewd, who are very cruel, who always think ill about their daughter-in-law, or the relationships between, you know, their son and the daughter-in-law. I think because of that, you know, because of those soaps, because of those kind of movies that are being shown to us कि जो सास है वो बहुत cruel है, वो एक witchy type है, it is related with, you know, the snake plant, and it is also being known as monster-in-law. But I feel that this should not happen. If it has happened, we can break that chain. This is what I feel, because I feel that our manners, our etiquette, and our dignity, in fact, doesn't allow us to use such statements or words for any person, be it, and this is my mother-in-law, right? So मैं अपनी mother-in-law के लिए ऐसा सोचूंगी तो फिर ये तो मेरा ही इंसल्ट है। जैसे लास्ट हमने स्पाउस एंड यू में डिस्कस किया था
कि अगर मैं ही अपने हस्बैंड के लिए बाहर बातें कर रही हूँ कि वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो मेरे हस्बैंड का तो चलो जो इंसल्ट होना है वो होना ही है, मेरा खुद का भी इंसल्ट है. एंड सिमिलरली वंस वी गेट मैरिड, नाउ दैट मदर इन लॉ इज माई मदर इन लॉ. दिस शुड बी दी फीलिंग टूवर्ड्स इट, हाँ, कि शी इज माई मदर इन लॉ, मेरी सास है, मेरी मदर इन लॉ है. तो जब वो एकदम से फीलिंग आएगा ना, दैट इंटेंट विल चेंज द एंटायर केमिस्ट्री इन द रिलेशनशिप. फिर चाहे कोई मॉन्स्टर इन लॉ बोलता रहे, कोई विच इन लॉ बोलता रहे, या कोई स्नेक टंग बोलता रहे, वट एवर, इट डजेंट मैटर, बिकॉज हमारा तो रिलेशनशिप हार्मनी में है. दिस इज वॉट हैपन्स. आई होप रोहित आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. And in case I'm not able to answer your question, feel free to ask it again. I will be happy to proceed with the answers further. Similarly, I have received the second question from Geeta. In fact, actually, I have received two questions from Geeta and from Shruti. So Geeta is mother-in-law and Shruti is daughter-in-law. पर गीता की नहीं, किसी और की, राइट? तो श्रुति जो है वो डॉटर इन लॉ है और उनकी मदर इन लॉ कोई और है, और गीता जो है वो मदर इन लॉ है और उनकी डॉटर इन लॉ कोई और है. पर इनके क्वेश्चंस सिमिलर से हैं. आई जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन. सो गीता सेज दैट हु इज द मदर इन लॉ? हाँ, शी सेज दैट आई ट्रीट माई डॉटर इन लॉ लाइक माई डॉटर, स्टिल शी डजंट वैल्यू मी. दिस इज व्हाट गीता सेज, हु इज द मदर इन लॉ. एंड श्रुति सेज दैट I do everything for my mother-in-law as I do for my mother, but still my mother-in-law loves her daughter the most. That's beautiful. That's a good question, right? So, hi Ahmed, thank you for joining in. Thank you for gracing this session. So, this is a wonderful question. Now, please permit me to share my views on this question. Maybe something can help us, and in case if any of you would like to share your thoughts, please do not hesitate to do that, right? So what I would like to say is, now, why to treat your daughter-in-law as a daughter, and why to treat your mother-in-law as a mother? You know, अब ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत controversial हो सकता है, right? But it's actually not controversial. The point is that every relationship has its own role to play. Every relationship has its own maryada, maryada or limitation. Every relationship has its own duties, has its own benefits as well. तो जो daughter है उसका role तो यही है ना कि वो मम्मी पापा, because the daughter is their blood, right? तो उस केस में it is very normal that a daughter, अगर हम अपनी scriptures की भी बात करें तो scriptures also tell us, और ये किसी भी religion के scriptures ले लीजिए आप, it's not only about Hindu culture और Sikh culture और Muslim culture और Christian culture, आप किसी भी culture में से आप scriptures उठाएंगे तो scriptures very clearly say that a daughter is meant to be loved by her parents, right? पर वो जो डॉटर है ना, शादी के बाद वो भी किसी के घर जाके बहू ही बन रही है, right? And daughter in law has become your daughter by law as in by the marriage that she has done, she has gone through, right? So क्योंकि वो daughter in law बनी है तो उसकी जो रोल, हमारा रोल और जो डॉटर इन लॉ का रोल है वो अलग है. शी कम्स टू टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट व्हेन आई एम सेइंग दिस डजंट मीन कि उसको प्यार नहीं करना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जो आपकी बेटी का प्यार है वो बेटी को ही मिलना चाहिए, है ना? पर आपकी जो डॉटर इन लॉ है गीता, डॉटर इन लॉ को अधिकार मिलता है. और अधिकार जब मैं बोल रही हूँ, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कि मैं जायदाद में अधिकार की बात कर रही हूँ. वो तो चलो मिलता ही है, मिलना भी होता है और मिलना भी चाहिए, या जो भी आप, अब वो आपका अपना अंदरूनी मैटर है, उसमें मैं नहीं पढ़ सकती. बट द पॉइंट इज दैट कि जो डॉटर इन लॉ होती है उसको अधिकार मिलता है, बेटी को प्यार मिलता है. और जो डॉटर इन लॉ है वो जिस घर से आई है वो उस घर की डॉटर है, राइट? तो
आपकी डॉटर इन लॉ को ऑलरेडी प्यार मिल रहा है उसके अपने पेरेंट्स से, आपसे उसको सम्मान चाहिए, आपसे उसको वो अधिकार चाहिए। अधिकार मतलब कि हमारी बहू ये देख लेती है, हमारी बहू इन चीजों का ध्यान रखती है, हमारी बहू तो हर चीज में चीजों को हैंडल कर लेती है, राइट। सो वो सम्मान, वो अधिकार जो आपके घर के रिचुअल्स हैं, उन रिचुअल्स में आपकी बेटी को पूरा सम्मान और जगह चाहिए, आपकी डॉटर इन लॉ को, हाँ, आपकी बहू को पूरा सम्मान और जगह मिलनी चाहिए। दिस इज व्हाट योर डॉटर इन लॉ नीड्स और शुड बी गिवन। और आई फील कि जब आप उसको वो सम्मान और अधिकार देंगे गीता, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी डॉटर इन लॉ है वो आपको वैल्यू करेंगी, क्योंकि हमें बेटी बनाना भी क्यों है ना। बेटी, अगर हम जस्ट इमेजिन रिलेशनशिप्स में ही इमेजिन करो ना, इफ यू मेक योर or if you consider your daughter-in-law as your daughter, then what will she become to your son, right? You may feel that it is debatable, but if we look it from the perspective of purity of the relationships, so the purity of the relationships tells us that our daughter-in-law needs much more than love. She needs that respect. She has to be given that. This is her right, and she has to be given that power, to take care of the house. तो आपको बस वही करना है. I hope I was able to answer your question, Geeta, and I hope that you will be able to let me know, maybe via this live session or maybe via DM once again, and I was able to do justice to your question. Now, if I come back to Shruti's question, which was similar but in the other way around. So what she says that I do everything as I do for my mother, but still she loves her daughter the most. So Shruti, I hope you are listening to me, and if I share my, my 2 cents on this, what I would like to say is that this question in itself, doesn't it give us the sense that there is a little bit of comparison that, maybe your mind is doing between how your mother-in-law treats you and how your mother-in-law treats your sister-in-law, your nanad, right? So comparison तो पहले question में ही आ गया है. So just imagine कि अगर ये comparison मन में कहीं इतना सा भी है ना, इतना सा भी, so ये automatically ना, it will stretch the things, it will distort the things, and you will start looking at every act and every deed of your mother-in-law with the sense of testing her, कि ये मुझको ज्यादा देती हैं या उसको ज्यादा देती हैं, ये मेरी ज्यादा वैल्यू करती है, उसकी ज्यादा वैल्यू करती है, जब वो घर आती तो तब वो ज्यादा खुश होती है, या फिर जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ तो ये ज्यादा खुश होती है. दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग इन योर हेड, एंड आई फील दैट दिस इज वेरी डेविस्टेटिंग फॉर एनी वन ऑफ अस अगर ये चीजें चल रही हैं तो. सो अगेन द सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई वुड लाइक टू शेयर हियर विद यू, श्रुति, एंड विद ऑल ऑफ अस हु आर लिसनिंग टू मी, that why do we want to make her our mother. अपनी मम्मी के साथ हम बहुत कुछ कर लेते हैं, उनके साथ हम गुस्सा कर लेते हैं, उनको कितना सुना देते हैं. हमारी मम्मी थोड़ी ना कुछ कहती हैं, या कहती भी हैं तो वे मान भी जाती हैं, है ना. पर मदर इन लॉ के साथ ऐसा नहीं कर सकते. शी इज अवर ट्रेनर, ठीक है, एंड शी इज अवर ट्रेनर, एंड शी इज experienced, or she holds the expertise in that area where I am new. So treat her like a mother-in-law. I always keep on saying in many of my sessions and programs wherever I go for the relationship harmony and everything, that why do we want to make friends, or why do we want to dilute the essence of the real relationships. तो कल को तो आप हस्बैंड के लिए भी हम कुछ बोल देंगे कि मैं अपने हस्बैंड को वैसा ही ट्रीट करती हूँ जैसे मैं अपने पापा को ट्रीट करती हूँ, या मैं अपने हस्बैंड को वैसा ट्रीट करती हूँ जैसे मैं अपने भाई को ट्रीट करती हूँ. ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं. हस्बैंड को तो हस्बैंड की तरह ही ट्रीट करना होगा. या फिर एक बहुत कॉमन चीज़ है कि आई कंसिडर मेरी सास तो मेरी फ्रेंड है, बोलते हैं बहुत लोग ऐसे, या बहुत मदर इन लॉज बोलती हैं कि मेरी डॉटर इन लॉ तो मेरी फ्रेंड है. प्लीज रिमेंबर, ये मैंने फ्रेंड्स एंड यू में भी कवर किया था, और मैं आज फिर से रीआइट्रेट करना चाहूंगी बहुत स्ट्रांगली. हाँ, प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली एवरीवन, दैट डू नॉट कंसिडर एनी ऑफ योर रिलेशनशिप्स एज योर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, बीइंग अ फ्रेंड इज अ वेरी कैजुअल रिलेशनशिप, राइट. या तो आप फ्रेंड बनिए कृष्ण सुदामा जैसे, but Krishna Sudama में भी it was a huge gap when Sudama came back to Krishna and he wanted to tell him that मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है तो मेरी हेल्प करो. तब कृष्ण जी ने कहीं जाके हेल्प की थी, राइट.
Friends, you know, yes, friends can be helpful to you, but friends will not take the responsibility of feeding you ever. Right? No hard feelings for friends or anything. I still have so many friends, but you know, I cannot be dependent on them, but I can be dependent on my father-in-law. You know, I can be dependent. I used to be dependent on my mother-in-law when I got married, when she was there. You know, she's no more with us now, and yes, there were lots of frictions within us as well. मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हाँ you know, हमारा तो perfect relationship था. Perfect कुछ नहीं होता है, हर चीज में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है. But then at least I'm happy that as the time passed, we both were getting the understanding of this, you know, forming, storming, norming, performing, and we actually were able to get to the stage where we were norming and performing. I'm happy about that. But the point is that I don't, you know, we do not have to treat or feel कि मुझे friend बनाना है. इतनी क्या कमी है, इतना क्या ऐसा अंदर you know hollow है कि हमको friend चाहिए. हमें क्यों नहीं सास चाहिए, right? Why? We need her. And you know, as I mentioned few minutes ago also, that just because there is so much of competition that I see with my mother-in-law, that is the reason the frictions happen. You know, this is what I shared few minutes ago, right? When we consider कि उससे अच्छा मुझे करना है, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है ना. हमें क्यों करना है उनसे अच्छा? ठीक है, होगा ना अच्छा, तो हमें जताना क्यों है कि हमारा उनसे अच्छा काम है, या हमारा उनसे अच्छा तरीका है, और या हम उनसे ज्यादा समझदार हैं. वो ज्यादा करके क्या हो जाएगा? ज्यादा होता क्या है? कौन नाप रहा है इसको? हु इज मेजरिंग कि ये ज्यादा है? हु इज मेजरिंग कि प्रबलीन जो कर रही है वो ज्यादा है और प्रबलीन की मदर इन लॉ जो कर रही है वो कम है? ये कौन है मेजर करने वाला? मेरा दिमाग तो बायस्ड होगा ना मेरी तरफ, राइट? सो यू नो, हमें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है. द पॉइंट इज दैट कि when you say that you do everything for your mother-in-law as you do for your mother, but still she loves her daughter the most, तो daughter का तो है फर्ज, daughter की तो right है कि उसको ज्यादा प्यार मिलेगा, और मिलना भी चाहिए ना. उनकी बेटी है, आपको नहीं मिलता. आपको आपके मम्मा प्यार नहीं करते हैं ना. मेरे को मेरी मम्मा प्यार नहीं करते, बहुत करते हैं, हद से ज्यादा करते हैं. तो अब वो प्यार तो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है. मुझे अपनी सास से सम्मान चाहिए, मुझे अपनी सास से वो अधिकार चाहिए जहां पे मैं घर को चला सकूं, जहां पे मैं जिस तरह से उन्होंने अपनी गृहस्थी चलाई है उस तरह से मैं भी अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा सकूं. उनसे सीख कर, रिमेंबर देयर इज अ डिस्क्लेमर टू दिस, उनसे सीख कर, उनके एक्सपीरियंसेस को समझ कर, उसमें से एसेंस निकाल कर, उसमें से लर्निंग निकाल कर, और आज के टाइम पे जैसा चलता है उस हिसाब से विजडम के साथ, समझ के साथ उसको करते हुए, right? So this is what I would like to answer, Shruti, for your question. I hope that I was not too harsh, क्योंकि you know, मुझे पता है मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स यही बोलते हैं कि I never take sides of people, क्योंकि हर चीज में हम साइड ले नहीं सकते. Every person has their own side of story, और हमको वो नहीं पता होती. So that is the main thing, right? So what I will say is कि when you fulfill your duties, this is what I want to say. You say that I am treating her like my mother. I will say treat your mother like your mother. अपनी मम्मी को अपनी मम्मी की तरह ट्रीट कीजिए, अपनी सास को अपनी सास की नजर से ट्रीट कीजिए, और सास की नजर से ट्रीट करने का मतलब है उनको वो मान सम्मान देना, राइट? सो वो मान सम्मान उनको मिलना चाहिए. कंसिडर देम एज योर ट्रेनर और कंसिडर देम एज योर मैनेजर, क्योंकि वो एक्चुअली में हमारे मैनेजर्स ही होते हैं. वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, उनसे फीडबैक भी लेना होता है हमें, राइट? तो मम्मी के यहाँ सब लाड प्यार चल जाएगा, यहाँ पे प्रमोशन हुआ है ना, कभी देखा है कि मैनेजर को वो फैसिलिटीज मिलती हैं जो एग्जीक्यूटिव को मिलती हैं? नहीं मिलती, राइट? सो फिर जब हम प्रमोट हो गए तो हमको वो बेटी वाली फैसिलिटी चाहिए भी नहीं है, वो डिमोशन हो जाएगा ना. व्हाई डू वी वांट टू गेट डिमोटेड? तो हमको तो उस स्ट्रगल में से हमेशा नए रोल में चैलेंजेस आते हैं. जब आप मैनेजर बनते हैं तो चैलेंज आता है ना. तो बस वो आप डॉटर इन लॉ बने हैं तो मतलब आप प्रमोट हुए डॉटर से डॉटर इन लॉ में, तो अब यहाँ चैलेंज आएगा. आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ हंसते खेलते हो जाएगा, तो होंगी ना लड़ाइयां होंगी, ठीक है, सीख लेंगे उसमें से. मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे तो होंगी, सीख लेंगे, पर पूरी जिंदगी भर के लिए मन पे क्या लेके बैठ जाना है, राइट? सो वी विल लर्न एंड वी विल ग्रो, वी विल इवॉल्व, एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट वी विल इवॉल्व, द मदर इन लॉ विल ऑल्सो इवॉल्व, क्योंकि कंसिडर हर ऑल्सो एज अ ह्यूमन बींग. वो कोई ऐसी नहीं है कि यू नो
मतलब कोई डायन नहीं आई है यहाँ पे, सिंपल सी बात है. शी इज ऑल्सो ह्यूमन बींग. घर चलाया ही है उसने इतने साल. सो आई फील श्रुति दैट आई वॉज एबल टू answer it for you. If you have any doubts, do not hesitate to comment it in here. And I would like to lovingly welcome my lovely Carol, my lovely Preeti Bhabhi, and Jogia. Thank you for joining in. And I'm so happy that you all have graced this session. You know, this session has become so valuable just because of all of you. And Carol, you say that it is a two-way street in the sense that respect is a mutual exchange between two individuals. Absolutely. I completely agree with you, Carol, that respect is a two-way it's a two-way street. And when we say that it's a two-way street, I am sure that we don't mean कि भाई मैं तो कर रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ नहीं कर रही है. It doesn't work that way. क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि and this is for each one of us, for me also, because I'm also listening to myself when I'm speaking. So what I'm trying to say is that कि many a times ना हम ये बोलते हैं कि मैं तो करती हूँ सब कुछ, वो नहीं करती. ये मदर इन लॉज भी बोलती हैं कि मैं तो उसको बहुत अच्छे से रखती हूँ, वो नहीं करती हैं. सो हमें रोल समझना है. अगर हम मदर इन लॉ हैं तो मदर इन लॉ का रोल होता है क्या, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, बहुत ज्यादा है ना, बार बार. तो वही चीज है कि मदर इन लॉ का रोल होता है सम्मान देना अपनी डॉटर इन लॉ को एंड अधिकार देना. मैं ये नहीं कह रही प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दो, और अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या ठीक है, आपको लगता होगा ये सही है, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको लगता होगा ये सही है. आई एम नॉट गोइंग देयर. तो प्लीज इसको प्रॉपर्टी की तरफ कोई नहीं लेके जाएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि मदर इन लॉ की ड्यूटी है कि वो अपने डॉटर इन लॉ को रिस्पेक्ट दिलवाएं और दें एंड अधिकार दें जो उसके बनते हैं रिचुअल्स में. हाँ, घर के काम ऐसे कि घर की डिसीजंस में जो पहले मदर इन लॉ करती थी, धीरे धीरे वो हैंड ओवर करते जाना है अपनी डॉटर इन लॉ को. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. अब कई डॉटर इन लॉज कहती हैं कि मैं बहुत कुछ करती हूँ और मेरी सास को फिर भी मेरी परवाह नहीं है, कुछ भी कर लेती हूँ, वो तो मुझे कुछ समझती नहीं है. सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि मे बी आप निकल के ही नहीं आए हो डॉटर के रोल से. आप यहाँ पे भी डॉटर की तरह ही सब बिहेव करो. जब हमारी शादी हो जाती है, और ये बेसिकली काम पेरेंट्स का है समझाने का, पर कई बार पेरेंट्स नहीं समझा पाते उस डेप्थ में, तो इसलिए आई एम डिस्कसिंग इट विद ऑल ऑफ यू कि ये पेरेंट्स का ही काम है जो समझाएं कि भाई वहां पे जाके मैच्योरिटी से रहना है. नाउ यू विल से कि अच्छा भी बूढ़े बन जाए क्या, हंसे नहीं क्या, ऐसा नहीं होता है क्या. हम जब समझदार होते तो हम हंसना छोड़ देते हैं, बल्कि हम और ज्यादा हंस पाते हैं, हम और ज्यादा खुश रह पाते हैं, राइट. तो मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आपको बूढ़ा दिखना है. हाँ, मैच्योरिटी का मतलब है कि हमें ग्रो अप होना है, ग्रो ओल्ड नहीं होना, ग्रो अप होना है, राइट. सो वी हैव टू ग्रो अप, वी हैव टू इवॉल्व, वी हैव टू बिहेव इन एन इवॉल्व्ड वे. आई कैन नॉट बी डूइंग ऑल द बचकानी हरकत दैट आई यूज्ड टू डू एट माई होम, और दैट मे बी आई स्टिल डू एट माई होम व्हेन आई गो टू माई मॉम्स प्लेस. वहां चलेगा ना, वो मेरी मम्मा है, जन्म दिया उन्होंने मुझे, वहां सब चलेगा, रग रग से वाकिफ है, राइट. पर ये मेरी सास है, यहाँ पे बचकानी हरकत नहीं चलेगी ना, क्योंकि वो मेरे रोल को शोभा नहीं देता. सो प्लीज रिस्पेक्ट योर रोल, right. All of you, all of the daughter-in-laws who are listening to me, and all of the mother-in-laws who are listening to me, I would urge you, request you to please respect your respective roles. Role of a mother-in-law, role of a daughter-in-law. And thank you very much, Priyank, for joining in and gracing this session. So, Geeta and Shruti, I hope I was able to answer your question. And I think I'm getting some requests to join. Okay, I'm getting one request from my lovely Bua. Okay, while I have accepted it, I'm not sure whether I'll be able to. Hi, Bua. हाय. बहुत अच्छी तरह से समझा रही है, बहुत ध्यान से सुन रही हूँ मैं तेरे को. Thank you so much, and I'm so happy, Bua, that you are here. मुझे पता नई मदर इन लॉ बनी हूँ तो बहुत मजा भी आ रहा है. इस करके मुझे बहुत इंतजार था कि क्या तू बताने वाली है और मैं क्या सीखूंगी उस चीज से. What will I teach you? In fact, I think that we all learn from you, Bua. But thank you so much for honoring me like this. नहीं, बहुत अच्छा लगा. नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला है. और ध्यान रखूंगी मैं तेरी ये बातें.
जो तूने कही है। मुझे शर्म आ नहीं गया। नहीं, शर्म वाली बात नहीं है, बच्चों से ही सीखते हैं। Oh, wow. Thank you very much. हाँ, It means a lot. It means a lot. And थैंक everyone यू। who is watching us, she's my lovely Bua, my gorgeous Bua, and let's say hi to her. Hello, Bua. Lots of love to you. हेलो, हाय, सेम टू यू, लव यू। Thank you, Bua. And hi, थैंक Carol. यू। So good to see you. How are you? I think that please unmute yourself, Carol, because I want to hear your voice. I am doing great. So good to see you. Yeah, I know. I am a little surprised, but I love what you were discussing, and I didn't want to move from there. So I continued Uh, listening each and every word. As usual, you always make sense in everything that you say. Oh, Carol, I am touched by your love and, the connection that we have. Thank you so much. Thank you so Most much, Carol. welcome, most welcome. It's just that I'm not prepared to sit in front of you. You're looking so beautiful as always. Thank you very much. And na, beauty lies in the eyes of the beholder. So your eyes are beautiful. Huh? Thank you, thank you. Okay. Yes. Yeah, I will not please feel free and to be here and or there is no pressure to be here as well. You know that, right? So whatever is comfortable for you is comfortable to me also. You know it. Your comfort is my comfort. Definitely, definitely. I'm Yeah. right now basically in my shop, but like I was listening to you, I would like to say, it makes a lot of sense to what you said. You give respect, you get respect in return. In a similar way, mother-in-law and daughter-in-law is a role. It's very true. We all go through this in our day-to-day life, and I think we learn also. Very, I've very been true. brought up only by my father, not my mother. I lost her when I was very small. Oh, And for me, my mother-in-law was my mother. And I feel I know that. how I treated her like a mother, I believe she treated me also like a daughter, because I gave that kind of a love and I gave that kind of a respect. Yes, friction is always there. There is a lot of, opinions that don't match. But I feel at the end of the day, even if it's my mother, we would have frictions and we come back to normal, Oh, we come back to square very one. true. And I feel it's the same thing that you need to follow with your mother-in-law. I feel, yes, we all talk behind our mother-in-laws, and I'm sure our mother-in-laws do the same. But keeping in mind, it always happens. We talk about our daughters also. We talk about everybody talks, But it's just the way you take it, and I feel life goes on. If you just sit back and hold on to grudges, you will never able to go further. So, Hmm. in this beautiful life, we have a few time. Um, Very true, so Carol. we don't have to waste it in keeping grudges, rather than just love and Absolutely. enjoy every single day that you have. Oh, Yes. true, true. Yeah. Thank you so much, Carol, for sharing these valuable insights. I'm sure that everyone who is listening to you is gaining a lot of it. Yes. So, Thank you so much. thank you. That's Thank all you. because It means a I lot. have been with you for so long and I've learned so much from you. And definitely, yes, the valuable teaching, when you respect your teacher and you listen to her carefully, I feel there's a lot that you gain back. So thanks Oh, to you for imbibing all these, amazing values in me also. Thank you. oh. Yeah. Thank you Thank very much, you. Carol. My pleasure. I accept, and I will also like to say that do not forget to give credit of all the hard work done by my Carol. You have also worked on yourself, right? It's Yes, not only me. yes, yes. I play a Discipline. little role, but you play a major role. Yes, it's always in our hands. Change is only when you Hmm. want to change. Absolutely, absolutely. So I will. I see that you have some more things to take care of. So I will not keep you staying here. Proceed with that, and always remember lots of love to you, Carol. Lots of love to you too. Bye. Take care. Thank you. I Thank you. Bye love bye. listening to you. Bye. Yes. Yes. Please. Okay. Bye. Bye. Okay, so my dear lovely people, this was my lovely Bua and this was my lovely Carol. And I think that I have few more joinees. Jyotika,
Gur, I'm sorry if I'm not able to pronounce your name. It's some Chaudhary Bhamri, Jai Gurudev and Dalji. Thank you very much for joining in and gracing this session. It means a lot. It means a lot. And now, with after this lovely exchange of love, trust, and blessings from my bua and from lovely Carol, let's proceed to the last question that I got from. I got this question from Mehak, and she says that my in-laws do not support us and they keep constant eye on us. How to handle this? That's a sweet question. You know, it feels like this. I remember. I know that. And yes, it feels like that at times. And it generally happens when we are newly married. So I don't know about the duration of your or the tenure of your marriage, Mehak, but it happens at times. We feel like that. With me, it happened when I was newly married. And how to handle this? I would like to say ki the way we can handle it is, Mehak. And before I answer it, Mehak, I'm very very thankful to you, and not only to you. I'm very thankful to Rohit, for Geeta, for Shruti also for asking these questions. क्योंकि आज की डेट में कौन है जो पूछता है? हर किसी को तो यही लगता है ना कि हाँ हाँ ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता रहेगा. You know, we generally people give up on their relationships. But Mehak, Geeta, Shruti, Rohit, I feel so proud and fortunate that we have people like you who do not give up on their relationships. You asking these questions, all of you asking these questions actually mean that you are committed to this relationship and you are committed to make it work to the best of its potential. So I'm sure it will happen. And now with this, Mehak, I would like to come back to your question to answer it. I do agree that it feels like that our in-laws, or it happens also. Why do say that it feels like? हो सकता है ना कि ये हो भी रहा हो कि in-laws support नहीं कर रहे, कि वो हम पे नजर रख रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं. नजर रखने से मतलब है कि इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब टेलीस्कोप से नहीं देख रहे हैं हमें, क्योंकि हम चांद सितारे नहीं हैं, पर इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी लाइफ में. आई एम श्योर दिस इज व्हाट यू मीन. सो इसको हैंडल कैसे करना है? व्हेन we do NLP now, neuro linguistic programming, it tells us that the meaning of the communication is the response it gets, which means कि अगर मेरे को कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उसका मतलब यही है कि मेरी तरफ से कोई ऐसा मैसेज जा रहा है. अब वो मैसेज क्या है? अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके साथ रूड हो या आप उनके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करो. इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि शायद बैक ऑफ द माइंड इतना सा भी शायद हमने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया कहीं पे. कहीं पे उस इंटेंशन में कमी है. कौन सी इंटेंशन में? जो कहती है दिस इज माई मदर इन लॉ, माई मदर इन लॉ. हम कहते हैं ना ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, राइट? तो डॉटर इन लॉ के लिए भी यही बोलना है. आप उसको बेटी मत बोलो, क्योंकि उसको बेटी का प्यार इतना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसको ऑलरेडी मिल रहा है. पर उसको मेन चाहिए सम्मान एंड अधिकार. जैसे मैं बोले जा रही हूँ स्टार्टिंग से, जब से मैंने ये सेशन शुरू किया मैं यही बोल रही हूँ. तो इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये हम सबके दिमाग में फिट हो जाए, डॉटर इन लॉज के माइंड में भी, कि हमको बेटी बेटी नहीं बनना है भाई, हमको बहू ही बनना है. मुझे तो बहू बनना है. टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, मैंने लास्ट टाइम स्पाउस एंड यू में भी शेयर किया था. उस समय पे तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे इस लाइव सेशन में, एंड ही वॉज द प्रूफ. जब मैं उनके सामने ये बात कह रही थी कि जब मेरी शादी हुई थी, मैंने भी तो वो सीरियल देखे हैं ना, सास भी कभी बहू थी और ये बालिका वधू और ये वो दिस दैट. तो मेरे मन में भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई मुझे तो ना बेटी बन के ही बना के ही रखें और मेरी ननद से ज्यादा मुझे प्यार करें. मैं इस तरीके से करूंगी कि मुझे ज्यादा प्यार मिलेगा, बेटी का प्यार मिलेगा. तो पर जब हम ऐसा सोचते हैं ना, ऐसा हो नहीं पाता. एंड आई फील सो ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि एक तो मुझे फैमिली ऐसी मिली, या ये फैमिली ही इतनी अच्छी थी. सबकी फैमिलीज अच्छी होती है, पर मैं अपनी फैमिली के लिए बोलना चाहूंगी कि दे वर वेरी पेशेंट, लाइक दे डिडंट गिव अप ऑन मी, राइट? सो और मैं तो आती भी डिफरेंट कल्चर से हूँ, राइट? सो दे वर वेरी पेशेंट टूवर्ड्स मी, एंड I'm very blessed that I got these subjects
NLP, hypnosis, mindfulness, meditation, ट्रेन द ट्रेनर. सो ये अब ट्रेन द ट्रेनर जो बोला ये कॉर्पोरेट तो लगता है, पर इसकी जो थ्योरीज है ना ये बिल्कुल स्पिरिचुअल लेवल पे काम करती हैं. सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट कि व्हेन आई गॉट मैरिड तो इनिशियली मुझे भी यही था महक कि और श्रुति कि मेरे को बेटी जैसा ही प्यार मिले. हाँ, और जब तक मैं ये सोचती रही ना, ऐसा नहीं कि मेरे को प्यार नहीं मिल रहा था, प्यार मिल रहा था, बट मुझे हमेशा कमी दिखती रहती थी कि अच्छा कंपैरिजन तो रहता है ना फिर, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो ना बेटी से, घर की बेटी से. But somehow, with all these learnings of these subjects that I have gained, with all the mentors that I got in my life, the way I started to perceive and experience my life, my lifestyle, my thought patterns, उससे मुझे ये पता चला कि मुझे बेटी नहीं, मुझे बहू बनना पसंद आएगा. And that very day ना, I started to change myself. Change as in I started to transform myself to behave like a daughter-in-law. जहाँ पे जैसे ही मैंने डॉटर इन लॉ की तरह बिहेव किया तो सबसे पहले तो ये थॉट गया कि भाई मैं अनमैरिड दिखनी चाहिए. ये बहुत रहता है, आई हैव सीन दैट. ये मेरे में भी था और ये मेरी मेजोरिटी ऑफ फ्रेंड्स में भी था जो मेरी एज की हैं, और ये मैं आज भी कई बार ही देखती हूँ कि अगर आप किसी को बोल दो ना कि आप तो लगते ही नहीं हो आप मैरिड, तो वो इतने खुश हो जाते हैं. राइट, क्यों नहीं लगे भाई. कभी आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आप किसी मैनेजर को बोल के देख दो कि आप तो लगते ही नहीं कि आप मैनेजर हो, आप बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे आप एग्जीक्यूटिव थे ना, लगते थे वैसे ही लगते हो, उसको इतना इंसल्टेड फील होगा. राइट, तो सिमिलरली जब हम जैसे ही ये रोल को एक्सेप्ट करेंगे ना, व्हेन द मोमेंट वी विल एक्सेप्ट दिस रोल ऑफ बीइंग अ डॉटर इन लॉ, तो ऑटोमेटिकली ना एक हमारा स्टैचर बढ़ जाता है. प्रमोशन है, रिमेंबर ऑलवेज इट्स अ प्रमोशन. सो उस समय पे ना हमारा जो एक चाइल्डिश बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली साइड पे जाता है, एंड वी बिकम अ लिटिल बिट मोर वाइजर एंड mature. And the day I decided कि I would like to be the daughter-in-law, I would like to be known as the daughter-in-law of these people. My mother-in-law and my father-in-law बोले कि ये प्रवीण हमारी बहू है. राइट, जिस दिन मेरे को इस स्टेटमेंट में गर्व महसूस होना समझ आया ना, समथिंग चेंज्ड, नॉट इन मी. अभी आपको लगेगा मैंने बदला अपना को, नो. The moment my bhav, my intention changed from being a daughter to my in-laws to become a daughter-in-law to my in-laws, जैसे ही ये intention change हुआ, something changed in the chemistry between me and my in-laws. And by God's grace, touch wood, by God's grace, from that day onwards, I have gotten so much of love, endless love, incomparable love from all my इन-लॉ. सिर्फ मेरे फादर इन लॉ से नहीं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ अभी नहीं है, पर मुझे मदर इन लॉ से भी बहुत प्यार मिला है उन दिनों में, जब मेरी वो सोच बदलनी शुरू हुई. एंड द वे माई इन लॉज, एवरीवन इन माई इन लॉ साइड, मतलब मेरी चाची सास, ताई सास, चाचा ससुर, ताया ससुर, जिस तरह से दे लव मी, दे पैम्पर मी एज इफ कि मैं न्यूली वेड हूँ. राइट, लाइक they just love me. I think because I love them a lot, because I have accepted them, because I am theirs and they are mine. This is what we have to, this intention we have to bring into our head कि ये मेरे in-laws हैं और मैं इन्हीं की हूँ. तो जैसे ही ये थॉट आता है ना, what happens, अंदर केमिस्ट्री कैसे चेंज होती है. The moment we think कि ये मेरे ही लोग हैं, और मैं इन्हीं की हूँ, जैसे ही ये थॉट आता है तो ऑटोमेटिकली उनका कल्चर उनका नहीं रहता, वो हमारा कल्चर बन जाता है. राइट, सो ऑटोमेटिकली जो उनके रीति रिवाज हैं वो उनके नहीं रहते, वो हमारे रीति रिवाज बन जाते हैं. सो इस तरह से वो केमिस्ट्री चेंज होती चली जाती है, एंड यू गेट ऑल द लव, all the respect and all the power from your in-laws, जो generally हम कहते हैं कि हमें देते नहीं. Right, so what I would like to say is that Mehak, for your question, that if you feel that your in-laws are not supporting you, check within yourself, अपने थॉट्स में, अपने फीलिंग्स में चेक करो कहीं पे कि हैव यू एक्सेप्टेड देम 100%, वेयर योर इन लॉज कम फर्स्ट, नॉट योर पेरेंट्स. अभी इस पे भी मुझे बहुत बैशिंग मिल सकता है, हाँ, कि अरे अपने पेरेंट्स को ना पूछें, हाँ उनका भी तो ध्यान रखना है. ध्यान, मैं ये तो नहीं कह रही ना कि ध्यान नहीं रखना. व्हाट आई एम सेइंग इज, वंस यू गेट मैरिड, राइट, तो उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है,
पर उसके बाद आपका ग्रेजुअली आपके इन लॉज और आपके हस्बैंड आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए, आपके मम्मी पापा नहीं। अब आपके मम्मी पापा आपकी प्रायोरिटी नहीं है, इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि आप उनका ध्यान नहीं रख रहे हो, आप रख रहे हो, जो आपको उनके लिए करना है वो कर रहे हो, पर आपकी प्रायोरिटी आपका घर है, आपके इन लॉज एंड आपका हस्बैंड, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी महक, कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि प्रायोरिटी ये नहीं है, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे हैं, ऐसी फीलिंग नहीं है। कहीं पे ये तो नहीं है कि मैं इन्हीं की हूं, अब इन्हीं की फैमिली की हूं और ये मेरी ही फैमिली है, इस थॉट में कहीं कमी है। तो ये चीज आपको चेक करनी है। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप ये चीज चेक करोगे और जिस दिन आपको वो छोटा सा भी माइन्यूस्क्यूल सा डॉट भी दिख जाएगा ना, तो उस डॉट को खत्म कर दो उसी समय पे, राइट। बिकम देयर डॉटर इन लॉ, बिकम उन्हीं के बन जाओ, और ऑटोमेटिकली यू विल सी दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। आप इतना सपोर्ट खुद को नहीं करोगे जितना वो कर देंगे आपको। आई हैव सीन दैट, आई एम सेइंग दिस टू यू फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग इट इन माय ओन लाइफ, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, एंड एवरीवन हु इज फेसिंग सच इशू जहां पे आपको लगता है कि आपके इन लॉज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू चेक इन योरसेल्फ कि आप कहाँ पे उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे आपके मन में ये फीलिंग की कमी आ रही है कि ये मेरे हैं, राइट। और जो वो कमी अगर आ रही है तो बस उसी समय इस पे काम करो। स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ दैट यही मेरा घर है, यही मेरे लोग हैं, मेरे सास ससुर ही मेरे लिए, मेरे सास ससुर हस्बैंड और जो भी आपके घर में आता है, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ एंड रेस्ट एवरीथिंग इज सेकेंडरी। अब सेकेंडरी कोई चीज होती है तो ऐसा नहीं होता कि हम उसको छोड़ देते, हम करते उसको भी हैं, पर प्रायोरिटी जो होती है उसमें मान ज्यादा होता है। तो हमारा मान भी तब तक ज्यादा है जब तक हम अपने इन लॉज को प्रॉपर, इन लॉज, क्योंकि आज का एपिसोड इन लॉज का है ना, तो जब तक हम अपनी मदर इन लॉ को प्रॉपर मान दे रहे हैं, दैट्स द मेन थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, महक। Hi Jignesh and Supuni and Abhinav, thank you for joining and gracing this session. So I feel, Mehak, this is what I would like to say about the question that you have asked, and I hope that I was able to explain it, elaborate it in the simplest terms. But कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आपके थॉट्स से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू लेट मी नो। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, दैट्स फाइन। आई वुड बी हैप्पी टू गेट टू अ रिजॉल्व, आई विल बी हैप्पी टू आंसर वट एवर योर क्वेश्चन वुड बी। सो डू लेट मी नो अबाउट इट, right? And I see that while I am looking at the clock over there, I see कि 10:05 हो गए हैं, and I'm so happy and I feel so touched and honored कि आप सब फिर भी मेरे साथ हैं. It means a lot. Your this togetherness that I feel with all of you is very special to me. Thank you for being here. And with this, I think that we should call it a night, क्योंकि ये Saturday night है, कल Sunday है, तो आप लोगों को अच्छे से अपना Sunday भी मनाना चाहिए. मैं आपको ज्यादा देर के लिए रोकूंगी नहीं. So आज का हमारा टेक अवे है वो यही रहेगा कि रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह ही रखना है. इफ इट इज अ मदर इन लॉ तो उसको मदर इन लॉ का रिस्पेक्ट देना है, उसको मदर इन लॉ की तरह उनके एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करते हुए उनसे लर्निंग लेनी है, उनके साथ कॉम्पीट नहीं करना है, उनको माँ नहीं माँ वाला मतलब इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग दैट आई एम गोइंग टू से, बट द पॉइंट इज दैट कि उनके साथ बचकाना नहीं. प्रमोशन है आपका, इसे प्रमोशन की तरह लीजिए प्लीज. एंड उस promoted manager की तरह behave करना है. Like if you are a manager, if you have been promoted, let's say as a supervisor, behave like a supervisor. Don't behave like an executive or an agent, क्योंकि agent हम तब थे, executive हम तब थे जब हम unmarried थे. अभी हमारा marriage हुआ है तो उससे थोड़ा सा level बढ़ा है. पहले लोग हमारा ध्यान रख रहे थे, चाहे हम जॉब भी करते हो तब भी पेरेंट्स ही होते हैं ना जो हमारा ध्यान रखते हैं. पर अब हम उस लेवल से ऊपर हुए जहाँ पे हमारे पास कुछ लोग हैं ध्यान रखने के लिए. तो इस चीज में इस चीज में प्राउड फील करना है, राइट? इसे बर्डन नहीं समझना है किसी ने. इट्स अ पावर, यू आर गेटिंग द पावर. रिमेंबर स्पाइडरमैन में क्या कहा है, दैट विद पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसको अगर आप फ्लिप भी करोगे ना तो वो क्या बोलेगा कि
when you get the responsibility you get the power. तो आप में से जिनको वो भी लगता है कि आपको पावर नहीं दी जा रही है अपने इन लॉज के यहाँ, तो शायद कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कतरा रहे हैं. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लीजिए, पावर्स अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि वो तो आउटकम है ना, वो आना ही आना है. इनपुट क्या है? इनपुट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना. Another thing is that ki accept your in-laws as your people, like become theirs, and give priority to your in-laws once you are married. मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इतने सालों की शादी के बाद भी मम्मा 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 ऐसे करते हैं जैसे कि वो अभी भी अनमैरिड हो. सो डोंट डू दैट, ये शोभा नहीं देता. हमारे खुद के बच्चे हो जाते हैं कई बार, और तब भी हम इतना ज्यादा मम्मा ऑब्सेस्ड होते हैं. और मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ. जब हमें अपना हस्बैंड ऐसा करता हुआ पसंद नहीं आता, अगर हमारा हस्बैंड शादी के बाद, बच्चे होने के बाद मम्मा 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 करता रहे, तो हमको भी नहीं अच्छा लगता ना. हम कहते हैं ना क्या मालक बन रहा है, मालक एज एन obsessed with mom. तो सिमिलरली ये हमें भी शोभा नहीं देता. So remember, we have to get to that pedestal where we are elevating our level. वो हो रहा है ना. तो आप प्लीज, अब आप उस एज में हैं जहां पे आप वो रोल निभा रहे हैं जो आपकी मम्मा निभाती थी. तो अब आप अगर मम्मा मम्मा मम्मा, मम्मी को प्यार करना अलग चीज है, पर बीइंग ऑब्सेस्ड विद योर मॉम, वो शोभा नहीं देता. वो आपके बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है. अगर आपके बच्चे हैं और वो देख रहे हैं कि आप इतने ऑब्सेस्ड अपनी मम्मी से, तो आप जस्ट सोचिए कि वो क्या सीख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि हमारी मम्मा अपनी मम्मा के लिए अभी भी डिपेंडेंट है. प्यार करना इज समथिंग एल्स. प्यार डजंट ब्रिंग डिपेंडेंसी, बट इफ एंड प्यार डजंट ब्रिंग ऑब्सेशन, रिमेंबर दैट. बट इफ यू आर ऑब्सेस्ड, द गर्ल्स आफ्टर मैरिज, इफ यू आर ऑब्सेस्ड स्टिल विद अवर मॉम और विद अवर पापा, तो वो ऑब्सेशन को खत्म करिए, प्यार रखिए. प्यार में कमी नहीं आनी चाहिए, पर ऑब्सेशन नहीं रहना चाहिए. राइट? बिकॉज यू हैव अनदर हाउस, योर ओन हाउस टू टेक केयर ऑफ नाउ. आपकी मम्मा ने अपने घर का ध्यान रखा ना, जिसमें आप उनके बच्चे थे. पहले आप आए उनके लिए, तो अब हमारी शादी हुई है तो हमारे लिए पहले हमारा घर आएगा. राइट? सो ये चीज का हमको ध्यान रखना है. ये एक बहुत डेलिकेट डांस है, भरतनाट्यम की तरह ऐसे. तो ये बहुत डेलिकेट डांस है. ये डांस डेलिकेसी के साथ ही डांस करते हुए हमें इन रिलेशनशिप्स को जो है फुलफिल करना है. हैंडल नहीं करना है, फुलफिल करना है, क्योंकि जब हम फुलफिल करेंगे तभी हम फ्रूटफुल एंड रिसोर्सफुल फील करेंगे. सो विद दिस आई होप दैट आई वाज एबल टू प्रोवाइड सम एसेंस, सम अंडरस्टैंडिंग अराउंड इट. और आपका माइंड जब इसे प्रोसेस करेगा तो मुझे यकीन है कि वो इसका जो रिसोर्स है, जो फ्रूट्स हैं, वो समझ पाएगा. और कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें थी जो डिस्कनेक्ट हैं या वो मैच नहीं करी आपकी थॉट से, आई एम ओपन टू हियर यू. I would love to hear you. Right? So let's call it a night. I will not take much of your time. It's 10:10 already. I'm so sorry that it got late today. But thank you once again for joining in. We will meet next Saturday, 9 p.m. to 10 p.m. और हम कवर करेंगे, क्या कवर करें? फादर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ? I feel sister in law cover कर लेते हैं. Right? So we will cover sister in law and you, मतलब ननद और आप. With this, I will say lots of love to you. Thank you very much, everyone, for gracing this session and for being here with me. It means a lot to me. And see you all next Saturday. Lots of love and see you next week. Take care. Bye bye.